وقت اثر کا تحقیقی وقت یہ کیسے نکالا جائے؟ اس کا جو فارمولا ہے یہ خاص اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایجاد کرتا ہے، اور تھوڑی اس میں پیچیدگی بھی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ فارمولا سمجھنا باقی فارمولاز کے مقابلے میں کچھ دشوار ہوتا ہے، اور آخر میں اس لیے اس کو ہم پڑھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال کیلکولیٹر وغیرہ کی مدد سے اس فارمولے کو اب آسان کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اسی کو آج ہم سیکھیں گے۔ مثال ہم نے لی ہے کینبرا 15 اگست 2022 وقت عصر ہم نکالیں گے۔ فارمولا یاد رکھیں کہ وہی ہے جو اوقات شرقیہ غربیہ والا، فرق اس میں صرف اس قدر ہوتا ہے کہ بعد سمتی وقت عصر کی یہ فکس نہیں ہے، اس طرح طلوع غروب کی یا پھر صبح صادق یعنی فجر اور عشاء کی ایک فکس بعد سمتی ہوتی ہے۔ وقت عصر میں ایسا نہیں ہوتا۔ وقت عصر کی مثل اول اگر نکالنا ہو یعنی امام شافعی اور صاحبین کے مسلک پر وقت عصر یعنی مثل اول پر، تو اسی طرح مثل ثانی یعنی امام اعظم کے موقع پر، تو بعد سمتی یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے ہر وقت۔ تو اب خاص جس وقت آپ مثل اول ثانی نکال رہے ہیں تو اس کی بعد سمتی تحقیقی اصل میں وقت عصر کے فارمولے میں بس اسی کو سیکھنا ہوتا ہے، باقی فارمولا تو وہی ہوگا۔ بعد سمتی جب ہمارے پاس تحقیقی آ جائے گی تو اوقات شرقیہ غربیہ والے فارمولے میں ہم وہ بعد سمتی ڈال لیں گے اور وقت عصر کا تحقیقی وقت ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو ہم یہاں وقت عصر حنفی یعنی امام اعظم علیہ الرحمہ کے مسلک پر جو وقت عصر ہے یعنی مثل ثانی پر، اس کو ہم سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار اس کا وہی ہوگا جس طرح کیمرہ آپ کے سامنے 15 اگست وقت عصر، سب سے پہلے ہم نے طول بلد عرض بلد یہ ہم نے ایک اپنے پاس سے لے لیا دعوت اسلامی کی ایپ سے، اور اس کا معیاری گھنٹہ کیمرہ کا یہ ہے 10 گھنٹے پلس میں۔ پلس کا مطلب یہی ہے کہ یہ شرقی ہے، آسٹریلیا کا علاقہ ہے کیمرا، تو یہ شرقی علاقہ ہے، اور آپ طول بلد سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا طول بلد بھی پلس میں ہے، تو یہ شرقی ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں چاہیے تھا یعنی وقت عصر کی بعد سمتی یا وقت عصر کا جو تقریبی وقت نکالنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بعد سمتی چاہیے ہوگی وقت زوال کی، یہ ضروری ہے۔ پہلے آپ زوال کی یعنی ظہر کے وقت کی بعد سمتی کیا ہے پہلے آپ یہ نکالیں گے، اور پھر آپ مثل اول اور مثل ثانی تحقیقی آپ معلوم کر سکتے ہیں، بعد سمتی اس وقت ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب وقت زوال کی بعد سمتی یہ ہم نے لینی ہے لانگ ٹرم المنک سے، اور چونکہ لانگ ٹرم المنک جو ہے یہ گرین وچ لندن کے اعتبار سے ہمیں تعدیل ایام میل شمس وغیرہ یہ ساری کیلکولیشن دیتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو چاہیے کیمبرا جو کہ آسٹریلیا کا علاقہ ہے وہاں کے لیے ہمیں چاہیے، تو اب اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جناب جب کیمبرا میں وقت زوال ہوگا تو اس وقت گرین وچ لندن میں کیا وقت ہو رہا ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مطلوبہ وقت۔ اس کو بھی ہم فارمولے سے بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ فارمولہ اس کا یہ پہلے بھی ہم استعمال کرتے آئے ہیں، 12 مائنس کر دیں طول بلد تقسیم 15،
تو जब आपने ऐसा किया तो आपके पास ये जवाब आया 2:03:29.26 तो ये आपके पास आ गया मतलूबा वक्त। ठीक है जी। अब आपने इस मतलूबा वक्त को जो अलमनक है यहाँ आप डालेंगे ताकि आपको तादील यानी तादील अय्याम इक्वेशन ऑफ मेल शम्स ये वक्त ज़वाल का हासिल हो जाए। तो आप यहाँ डालेंगे। तो जब हमने यहाँ डाला तो ये देखें हमारे पास जो तादील अय्याम बवक्त ज़वाल आया वो आया 4 मिनट 35.3 और इसी तरह आप मेल शम्स बवक्त ज़वाल ये भी यहाँ से आप ले लेंगे जब आप ये वक्त डालेंगे। चलिए हम डाल के देख भी लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो जाए। 2-3-29.26 और 15 अगस्त ये देखें अगस्त 15 और 2-3 और 29.26 कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन भी आ गई, डिक्लिनेशन भी आ गई। तो ये आप अपने पास नोट कर लेंगे। ये बवक्त ज़वाल का मेल शम्स भी है और तादील अय्याम भी है जो कि ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो ये देखिए हमने ये निकाल के अपने पास रख लिया। मेल शम्स बवक्त ज़वाल, तादील अय्याम बवक्त ज़वाल और निस्फ कुतर बवक्त ज़वाल। तो निस्फ कुतर यही सेमी डायमीटर 947.4 तो ये भी दर्जा दकीका में नहीं बल्कि सानिया में है। इसका भी एतबार करेंगे कि ये सानिया में है। अब ये आपने अपने पास नोट कर लिया। तादील मरवज चूँकि ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये भी हमने अपने पास पहले से निकाल लिया और निकालने का तरीका वही कि स्टैंडर्ड टाइम जो है मेयारी वक्त माइनस तूरे बलद तकसीम 15 तो आपके पास तादील मरवज आ जाएगा 3 मिनट 29.26 तो ये सब आपने अपने पास ले लिया। अब आपने मेयारी ज़वाल का वक्त निकालना है। ठीक है जी। इसका फार्मूला वही जो हम करते आए हैं 12 प्लस तादील मरवज और प्लस तादील अय्याम। तादील अय्याम वही जो भी हम लॉन्ग टर्म अलमनक से लेकर आए हैं 4 मिनट 35.3 तो आपके पास मेयारी वक्त आ गया ज़वाल का 12:08 4.56 ये 15 अगस्त के ज़वाल का मेयारी वक्त आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब आपको बौद्ध समती बवक्त ज़वाल ये चाहिए होगी। इसका फार्मूला हमारे पास अर्ज़ बलद माइनस मेल शम्स। ठीक है। इससे आपको अर्ज़ बलद ये देखें हमने अपने पास पहले से नोट करके रखा हुआ है -35.2834 और ये भी माइनस का मतलब ये कि ये जुनूबी है। तो ठीक है आप अर्ज़ बलद यहाँ लिखेंगे और माइनस कर देंगे मेल शम्स। मेल शम्स वही ये बवक्त ज़वाल वाला 14 दर्जे 5 दकीके 32 सानिया। तो जब आपने ऐसा किया तो आपके पास बौद्ध समती बवक्त ज़वाल मिली आपको माइनस में 49 दर्जे 32 दकीके 32.46 सानिये। तो अब आपको अब इस बौद्ध समती को एब्सोल्यूट कर लेंगे आप यानी मुस्बत बना लेंगे। ठीक है। अब ये जो बौद्ध समती आपको मिली ये है बवक्त ज़वाल की। लेकिन ये बौद्ध समती एक तो आपको अब चाहिए मिसले अव्वल और मिसले सानी की। तो उसके लिए फिर तरीकाकार ये होगा कि ये बौद्ध समती जो ज़वाल की है इसको भी हम तहकीकी बौद्ध समती में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे
उसके लिए इस बोधे समती से हम पहले निस्फ कुतर को माइनस करेंगे और फिर जो जवाब आया तो उस जवाब से फिर इनकिसार बवक्त ज़वाल इसको माइनस करेंगे। ठीक है जी। और अब जो हमें बोधे समती हासिल होगी तो वो बवक्त ज़वाल की तहकीकी बोधे समतियाँ होगी। सवाल ये पैदा होता है कि निस्फ कुतर और इनकिसार को हम माइनस क्यों कर रहे हैं। तो वजह ये है कि जो सूरज का साया है असल में जो ये बोधे समती बवक्त ज़वाल अभी हमने निकाली है तो ये सूरज के सेंटर के एतबार से है, जबकि सूरज का जो साया है वो सेंटर से नहीं बनता बल्कि उसके किनारों से बनता है। लिहाजा हम निस्फ कुतर को माइनस इस बोधे समती से करेंगे तो अब हमें सूरज का जो किनारा है उसकी बोधे समती मिल जाएगी। लेकिन फिर इनकिसार क्यों माइनस किया तो उसकी वजह यह है कि सूरज जो है जहां उसका किनारा इस टाइम मौजूद है वो हकीकत में वहां नहीं है, वो तो हमें इनकिसार रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आ रहा है, जबकि असल में जो असल सूरज होता है वो कुछ नीचे होता है लेकिन रिफ्लेक्शन इनकिसार की वजह से हमें कुछ ऊपर नजर आता है। तो अब ये जो 34 दकीके ये जो इनकिसार के हैं ये हम पहले भी आपको याद होगा तुलु गुरु में भी हम ये जो इनकिसार है ये बोधे समती से हम प्लस करते आए हैं और यहाँ भी हम इसको पहले तो माइनस करेंगे इनकिसार को। ठीक है, ये जो हमने बोधे समती बवक्त ज़वाल से पहले हमने माइनस किया निस्फ कुतर को और हमें हासिल हुई बोधे समती 49 दर्जे 6 दकीके 45 इशारिया 6। ठीक है, सानिये ये देखें ये बोधे सम निस्फ कुतर ये माइनस किया बोधे समती बवक्त ज़वाल से तो ये आपके पास जवाब आ गया। ठीक है, अब इससे आप माइनस करेंगे मजीद क्या इनकिसार, ताकि सूरज जो नजर आ रहा है वो नहीं हकीकत में जहां है, क्योंकि साया उस हकीकत में जहां है सूरज वहां का बन रहा है, तो उसके लिए फिर हम इनकिसार माइनस करेंगे तो जब जाके साए में एक्यूरेसी हमें मिलेगी। ठीक है, तो बवक्त ज़वाल का इनकिसार ये कैसे हम हासिल करेंगे तो उसके लिए लमसम हम 34 दकीके हम माइनस नहीं करेंगे बल्कि इसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये देखें एज इट इज लिखा हुआ है, इसी के जरिए बवक्त ज़वाल का इनकिसार हमें हासिल होता है। वो फार्मूला ये है 0.017 10 ब्रैकेट बोधे समती यहाँ ये वाली आप लिखेंगे जो निस्फ कुतर घटाने के बाद आपको मिली, तो -10.3 तकसीम ब्रैकेट 95.11 माइनस बोधे समती, यही जो अभी आपने यहाँ डाली थी यही रिपीट होगी और डबल ब्रैकेट बंद। तो अब आपके सामने ये जवाब आ जाएगा इनकिसार बवक्त ज़वाल 0 दर्जा 1 दकीका 10.13 सानिया। अब इस इनकिसार को आप घटा देंगे इस बोधे समती से, तो ये देखिए हम घटा रहे हैं, ये हमने अपने बोधे समती लिखी, ये वही वाली बोधे समती जिससे हमने निस्फ कुतर निकाला हुआ है और माइनस कर देंगे इनकिसार बवक्त ज़वाल। तो अब आपके पास जवाब आ जाएगा 49 दर्जे यानी बोधे समती बवक्त ज़वाल तहकीकी 49 दर्जे 5 दकीके 35.47। ठीक है, तो अब इस पर आप मिसले अव्वल और मिसले सानी लेंगे। ठीक है, और मिसले अव्वल सानी लेने के लिए फार्मूला वही जो हम इस्तेमाल करते आए हैं बवक्त असर बोधे समती का जो फार्मूला हम हल करते आए हैं 10 इनवर्स ब्रैकेट 10 बोधे समती कौन सी ये वाली जिससे इनकिसार भी निकल गया है और निस्फ कुतर भी निकल गया है, तो ये आप बोधे समती डालेंगे और
ब्रैकेट बंद करेंगे, +2 कर देंगे, यानी अगर मिसले अव्वल चाहिए तो +1 और मिसले सानी चाहिए तो +2। तो जब आपने ये फार्मूला हल किया तो आपके पास मिसले सानी की बूद समती तहकीकी हासिल हो गई, 72 दर्जे 24 दकीके 33.8 सानिये। ठीक है, ये आपके पास मिसले सानी की बौद्ध समती आ गई। अभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, इसी बौद्ध समती में आप इनके साथ जो आपने निकाला था पहले उसको ऐड करेंगे और फिर निस्फ कुतर सेमी डायामीटर वो दोबारा इसमें शामिल करेंगे। तो सवाल पैदा होता है कि जनाब पहले निकाला ही क्यों था। तो निकालने की वजह तो मैंने आपको अर्ज कर दी कि सूरज के सेंटर का साया नहीं बनता, किनारे से बनता है, लिहाजा किनारा लेने के लिए हमने निस्फ कुतर को यहाँ माइनस किया था बौद्ध समती बवक्त ज़वाल से। और फिर सूरज जहाँ हमें दिखाई दे रहा है असल में वहाँ है नहीं, कुछ नीचे है, तो लिहाजा इनकिसार को हमने उस बौद्ध समती से माइनस किया था कि ताकि हकीकत में सूरज की जो पोजीशन है वहाँ का साया यानी मिसले बौद्ध समती बवक्त ज़वाल हमें मिले। तो अब हम दोबारा इन चीज़ों का ऐड इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि फार्मूले में जो वक्त के लिए हम बौद्ध समती डालते हैं तो उसमें सूरज के सेंटर का मरकज का एतबार होता है वक्त निकालने के लिए शरई लिहाज से। ठीक है, तो अब इस वजह से हम इनकिसार को भी दोबारा ऐड कर देंगे और निस्फ कुतर को भी ऐड कर देंगे ताकि फार्मूले के लिए जो बौद्ध समती हमें चाहिए तो वो चूंकि शरई एतबार से चाहिए, सूरज के सेंटर के मरकज के एतबार से चाहिए, तो वो फिर हमें हासिल हो। लिहाजा अब आप इस बौद्ध समती में जिससे आपने इनकिसार और निस्फ कुतर निकाल कर मिसले सानी हासिल किया था 72 दर्जे 24 दकीके 33.8 सानिये, अब हम इसमें शामिल कर दें इनकिसार मरई से हकीकी की जानिब, यानी शामिल इनकिसार ऐड कर दें। अब इनकिसार जो है इसका फार्मूला अब यहाँ थोड़ा चेंज होगा। निकालते वक्त जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था इनकिसार का इसमें थोड़ी तब्दीली है, वो भी आप एज इट इज यहाँ देख लीजिए। 0.0167 10 ब्रैकेट बौद्ध समती कौन सी, ये जो अभी हमें हासिल हुई थी अपने मिसले सानी वाली। ठीक है, मिसले सानी वाली जो बौद्ध समती हमें तहकीकी हासिल हुई थी वो यहाँ लिखेंगे, -7.31 तकसीम ब्रैकेट 94.4 माइनस बौद्ध समती यही वाली रिपीट करेंगे, डबल ब्रैकेट बंद। तो जब आपने ऐसा किया तो आपको इनकिसार हासिल हो गया ये 0 दर्जे 3 दकीके 5.88 सानिये। ठीक है, इस इनकिसार को अब आप ऐड करेंगे, शामिल करेंगे किसमें, इस बौद्ध समती मिसले सानी की तहकीकी बौद्ध समती में। तो ये देखें, पहले ये बौद्ध समती हमने लिख ली, वक्त असर की मिसले सानी की बौद्ध समती तहकीकी, प्लस किया इसमें इनकिसार ये जो भी हमने हासिल किया था। तो अब नतीजा हमारे पास आया 72 दर्जे 27 दकीके 39.68। ठीक है, अब आप इसमें सेमी डायामीटर निस्फ कुतर जो आप पीछे निकाल कर आए थे इस बौद्ध समती में उसको वापसी ऐड कर लें। तो यहाँ बौद्ध समती आप लिखें और प्लस कर दें सेमी डायामीटर वही सानिया में 947.4, ये जो हमने वक्त ज़वाल का सेमी डायामीटर हासिल किया था सानिया में वो आप यहाँ ऐड कर दें। तो अब आपके पास देखें बौद्ध समती क्या हासिल हुई, मिसले सानी की 72 दर्जे 43 दकीके से 27.8 सानिये। ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट बौद्ध समती आपको मिल गई। अब आप इस पर असर का तहकीकी वक्त जो है वो असर का औकात शर्किया गरबिया वाला फार्मूला आप इसको जो पीछे हल करते आए हैं
वही आप हल करेंगे। जिस ये देखें 12 प्लस तादील मुरवज प्लस तादील अय्याम, तादील अय्याम यहाँ वही आप वक्त ज़वाल वाली डालेंगे जो आप यहाँ निकाल कर आ चुके हैं। ठीक है, प्लस कर देंगे क्योंकि असर औकात गरबिया से है तो प्लस का निशान, कोस इनवर्स डबल ब्रैकेट कोस बोध समती, बोध समती अब आप ये डालेंगे। ठीक है जी, तहकीक की बोध समती, और वही साइन अर साइन मेल, और यहाँ मेल ये वाला डालेंगे जो आपने वक्त जवाल का लिया था, मेल शम्स बवक्त जवाल, ये वाला आप मेल इस्तेमाल करेंगे। तो वक्त असर का जो फार्मूला जब हमने अप्लाई किया तो ये देखें बोध समती हमने वही तहकीकी डाली कोस के बाद, बाकी सारा फार्मूला एज इट इज रहेगा। और यहाँ जो अपने मेल शम्स है ये बवक्त ज़वाल वाला हम डालेंगे, और वो हम शुरू में अपने पास महफूज कर कर आए हुए थे तो यही हमने डाला, और हमारे पास वक्त निकला 15:53 61.63 सेकेंड। ठीक है जी, तो अब इसको इस वक्त को हम लॉन्ग टर्म अलमनक में डालेंगे। असर का जो अभी ये जो वक्त निकला जब ये अलमनक में डालेंगे -10 के साथ ही वक्त डाला जाएगा, क्योंकि ये कैमरा का जो मियारी वक्त है स्टैंडर्ड टाइम है वो +10 है। तो अलमनक में जब इसको डाला जाएगा तो उलट करके यानी -10 करके इसको डालेंगे, और फिर हम इस पर बौद समती इस पर जो हमें तादील अय्याम और मेरे शम्स मिलेगी तो वो हम लिखेंगे। तो हमने ऐसा ही किया। देखें जब हमने इस वक्त वो लॉन्ग टर्म अलमनक में डाला तो अब देखें क्या चेंजिंग आई। तादील अय्याम में 4 मिनट 33.5, पहले था 35.3, तो ये हमने तब्दीली यहाँ डाल दी तादील अय्याम की। मेरे शम्स में क्या तब्दीली आई तो 14 दर्जे 2 दकीके 33 सानिये, तो ये देखें कुछ चेंजिंग है, तो ये हमने डालने के बाद जब फार्मूला दोबारा अप्लाई किया वक्त असर आया 15 बजकर यानी वही शाम के 3:54 1.94 सेकेंड। अब इसको फिर हम एक दफ़ा अलमनक में डालकर दोबारा तादील अय्याम और मेल शम्स हासिल करेंगे, और हासिल करने के बाद जब हमने दोबारा फार्मूले में इसको अप्लाई किया तो ये देखें अब हमारे पास जो तहकीकी वक्त आया 15 बजकर यानी वही शाम के 3:54 2.1 सेकेंड। तो ये तहकीकी वक्त असर है, और जो ऐप है ऐप में 15 दिसंबर कैमरा का जो वक्त डला हुआ है 3:53 तो ये जो कुछ सेकंडों का आपको फर्क नजर आ रहा है तो ये असल में जो तहकीकी वक्त असर का फार्मूला है तो इसमें 4 सेकंड तक का फर्क ऐप से आ सकता है, इसको हम इग्नोर करेंगे, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये फर्क आता है, तो बहरहाल ये इग्नोर करेंगे। तो ये देखें बस इतना ही ये फर्क है, क्योंकि 53 मिनट के बाद 57 सेकंड है। तो अब ये भी ज़ाहिर है 57 पूरा नहीं होगा, ये हो सकता है 57 इशारिया आगे कितने सेकंड होगा, लेकिन राउंडेड एप कर देती है तो उस वजह से 57 सेकंड कर दिया। तो अब हमारे पास जो वक्त आया वो 54 मिनट 2.1 सेकंड। तो ये बस इसका जो गैप है हमारे और ऐप के वक्त में वो सेकंड का ही है, 3 से 4 सेकंड का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक के वक्त हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अन अलास्का उसके लिए भी ये पूरा फार्मूला हल किया गया है, और बिल्कुल उसी तरह वही सेम तरीका है। बस इसमें ख्याल ये रखना होता है कि बोधे समती मिसले अव्वल और सानी की तहकीकी हम कैसे हासिल करेंगे, तो उसका तरीका आप यकीनन समझ चुके होंगे कि पहले बोधे समती वक्त ज़वाल वाली जो हमें हासिल होगी तो उससे निस्फ कुतर निकालेंगे और फिर इनकिसार निकालेंगे, और फिर हम
مثل اول اور مثل ثانی کے بود سمتی لے لیں گے اور پھر اس میں دوبارہ پہلے انکسار ایڈ کریں گے اور پھر نصف قطر ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس تحقیقی وقت اثر کی بود سمتی حاصل ہو جائے گی. باقی فارمولا وہی طریقہ کار جو ہم پہلے کرتے آئے ہیں اسی کے مطابق ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.